Okay, so friends, this is chapter number 3 from The Art of Focus. And this talks about two characters here right now, Mr. Rajiv, who was at Dr. Kulkarni's clinic just for a regular checkup. And what happens is that particular day, it was raining extremely heavily. And he was expecting to be back home by 8 o'clock. And he kept looking at the watch constantly, and he kept asking doctor, or kitna time lagega? But doctor discovered something about his health, and he said, we'll need a little bit more time to scan, and be able to assess what is the diagnosis for you. And the clock turned 8, but still the tests were going on, and Mr. Rajiv was, although patient and silent, but he kept looking at the clock, and this shows that there was something inside his mind that was going on. So finally, after 15-20 minutes, it was raining again, and it would be difficult for him to be back home. And doctor just completed working on the stitches and all. He had some injury, Mr. Rajiv. And doctor said, sir, now I'm done. I'm so sorry, you wanted to be home by 8 o'clock. And but I was not able to finish on time. Please forgive me. And Mr. Rajiv said, that's okay, sir. That's totally fine. But then the doctor got a little curious. May I ask, what was it? Why did you want to hurry so much to be home? So now Mr. Rajiv says, sir, actually, I needed to be back home. My wife is sick. She's suffering from Alzheimer's. Okay. Have you heard this story? No, we did it, but I don't remember now. Okay, fine. Okay. So she's suffering from Alzheimer, and now the doctor's face turned pale, and he said, I'm so sorry. The husband said, every evening I go and spend time with her. 8 o'clock is our time that we get to spend together. And although she does not remember who I am, because every day is a new day for her, however, I try to make a point to spend time with her. And then the doctor said, if she doesn't remember who you are, what difference does it make whether you show up or not? How does it matter? Because she will not remember anyway. And that's where our beautiful answer comes. Mr. Rajiv says, even if she doesn't remember who I am, I definitely remember who she is in my life. Okay. And friends, this reminds me of a very short story I read in my childhood, which said, there were two kids, not kids, two young adults who probably were about to steal something, and they, preventing themselves to be caught, they hide themselves inside a cave or a place like that, and the other one is scheming ki ha chalo hum ye churayenge, hum ye karenge. And that's when the other person has this conscience कि नहीं यार हम ये नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे ऐसे, एंड इट्स अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं देख रहा, हमें किसी को भी नहीं पता चल रहा. एंड द अदर पर्सन सेज कि मुझे तो पता है कि हम ये कर रहे हैं, तो आई एम वॉचिंग. ठीक है. और अगर मैं एक बार के लिए भूल भी जाऊं कि मैं देख रहा हूं, तो भगवान तो डेफिनेटली देख ही रहे हैं हम जो भी कृत्य कर रहे हैं. तो कई बार लाइफ में हम भूल जाते हैं कि और लोगों को याद होगा या नहीं होगा हम कुछ भी कर रहे हैं, बट ये रिमेम्बरेंस, ये जो बुक्स हैं गौरांग दास जी की, ये हमेशा छोटे छोटे चैप्टर्स हमें ये डेफिनेटली याद दिलाते हैं कि वो एक थ्रेड ऑफ रिमेम्बरेंस विद ऑलमाइटी या डिवाइन जो है, वो कंटेम्पररी लाइफ के भी एवरीडे एक्सपीरियंसेस में हम कर पाते हैं अनुभव. सो व्हेन राजीव सेड कि इवन इफ शी डजंट नो, इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दैट शी हैज बीन. एंड मेरा जो यूथ है वो बहुत ब्यूटिफुल हुआ है उसकी प्रेजेंस की वजह से. एंड आई थिंक फ्रेंड्स, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें ये सिखाता है कि एवरीथिंग हैज टू बी व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें. तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस जरूर कर पाए अगर, कि हाँ, व्हाट इज इन इट फॉर मी, दैट इज अ विन फॉर मी, बट इट बिकम्स अ विन विन फॉर all parties when I say what can I contribute here, what can I give here. तो वो दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पर हम ग्रेसफुली कर पाए. तो यहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत ही अम्यूज्ड होते हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं. और यहाँ पे गौरांग दास जी हमें कुछ बहुत खूबसूरत मैसेज सिखाते हैं टुवर्ड्स द एंड, कि हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसे ग्रो कर सकते हैं.
एंड फ्रेंड्स, आई थिंक रिलेशनशिप इज समथिंग जो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं हमारी लाइफ में. और by relationship we do not only mean romantic relationship, it is platonic as well, friendships as well, and day to day interactions with people, neighborhood. कुछ बहुत प्यारे टिप्स उन्होंने बताए, जस्ट थ्री ऑफ देम. फर्स्ट ही सेज engage people according to their propensities. I found this very interesting, and I learned that attraction might bring us together at the first go, but it is propensity and in alignment with each other's propensity that might ensure that we stick longer together, right? So what is propensity here? Propensity is किसी इंसान का एक भीतर का ड्राइव क्या है, व्हाट इज समथिंग दैट लाइटन्स अप द अदर पर्सन्स आईज. और वो प्रोपेंसिटी उस इंसान की लॉन्जेविटी और उस रिलेशनशिप की भी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है. एक नेचुरल इंक्लिनेशन जो आपका किसी चीज की तरफ हो, आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, कोई एक एस्पेक्ट जो आपको बताता है कि इसके जरिए मैं अपने आप पोटेंशियल एक्चुअलाइज करता हूँ. That is what the author means by propensity here. Some person might have a propensity for social work, spirituality, entrepreneurship. I think, Palak, you have a strong propensity to lead a conscious book reading circle, and that's something that drives you. And your partner definitely has to appreciate that. And that's when longevity of the relationship and stability ensures. I'm not intending to make it personal, but for all of us, if some of you friends are extremely oriented towards good health, movement, walking, yoga, even if your partner doesn't do it themselves or might not be as crazy about it as you, they need to respect that for sure, and they need to acknowledge and understand कि ये आपके लिए बहुत important है. That was one. So respect each other's propensities. Recognize multiple ways of getting things done effectively. यहाँ पे बहुत अच्छा hack किया हुआ है. हर इंसान की अलग अलग पर्सनालिटी होती है. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस बुक बाय डॉक्टर गैरी चैपमैन, द 5 languages of love. And that says, somebody might better respond to instruction, a practical instruction. Somebody might better respond to a warm kind of language. And it's not just language, it's आपको पता है कि आपके घर के आसपास के लोगों का क्या, घर में जो लोग हैं उनका क्या टाइप है. कोई मल्टीटास्क करता है बहुत इफेक्टिवली, कोई परफेक्शनिस्ट है, किसी को सफाई बहुत पसंद है. मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें पाइल अप होकर एवरी डे बड़ा मैटर फॉर फाइट या आर्ग्यूमेंट बनती है लोगों की लाइफ में, क्योंकि लोग खुद को कॉन्शियसली नहीं समझते हैं. लोग खुद ही को प्रायोरिटाइज करके रखते हैं, बाकी लोगों को नहीं एक्नॉलेज करते. तो यहाँ पे ये छोटी चीज कि मैं आपको समझूं, थोड़ा सा आप मुझे समझे, और हम एक हारमोनियस तरीके से उसको कम्युनिकेट कर पाए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाए, वो सेकेंड एस्पेक्ट है. एंड द थर्ड वन इज प्लीज ऑलवेज गिव स्पेस. इन्होंने यहाँ पे कहा है कि रिस्पेक्ट एंड रिकग्नाइज पीपल्स नीड फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग. Often when we get in relationships, we might sometimes think that it is in my hands. My dear friends, my fault actually. I'm doing the art of focus, not the art of habits, because I read this, which is why I'm reading stories out of that. I hope you're still enjoying. So you cannot control how the other person thinks. Even if you love one another, you cannot control how what are those that person's inclinations या क्या चीजों को लेकर के. अगर आपको ये करना है तो आप रिलेशनशिप के स्टार्ट में ये सारी चीजें एक्सप्लोर करें बहुत अच्छे से. और यहाँ पे ये ट्रिकी होता है बिकॉज पीपल आर वेरी गुड एट हाइडिंग, दे ट्राई टू प्लीज द अदर पर्सन, और ग्रेजुअली फिर आता है, तो ये ट्रिकी होता है. बट आप एक अच्छे रिलेशनशिप को नर्चर कर पाते हैं जब आप ये दोनों जन रिकॉग्नाइज करें कि इट इज हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस, इट इज फ्रूटफुल फॉर बोथ ऑफ अस. सो दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी. And the major theme here was human quality, relationships. The story titled Memory of Love. That was story number 3. And now we're talking about story number 4. This is Talking Frog and Determination. And here the human quality is focus. And I'm sure when we were kids, do you remember we read the story on a princess coming towards a pond and there was a frog and the frog talks?
And then he says, if you kiss me, I'll turn into a prince, and I'll improve your life. And then the princess does kiss the frog, and he turns into a beautiful prince. That's the story we grew up with, right? Now there's another perspective to this story here. Shweta, a teenager, was walking on the road, हिमाचल प्रदेश के कसौली छोटे से शहर में, and बहुत जोर से बारिश आ रही थी, and she needed to get some supplies for her house. She was getting some groceries so that her mother could prepare breakfast. And suddenly, श्वेता के सामने प्रकट हो जाते हैं एक golden frog. Now this is very, very, I mean, amusing. And the frog jumps in the middle of the road and starts speaking to Shweta. He says, if you hold me and follow my instructions, I will turn into a handsome prince. Shweta gets amused by this, but she does not bother. She doesn't find it interesting. She picks up that frog and places it inside her bag. And the frog is actually baffled by her response कि भाई इसने मेरे को घास नहीं डाली है क्या है. And then he again वो बैग से jump करके बोलता है, if you lift me up and scratch under my neck, I will turn into a handsome prince. Again, Shweta does not feel amused at all. She just keeps quiet and keeps walking. And her response was not I mean, delightful at all. Now, the rattled, the frog squeals, I was a charming prince once, but now I'm caught in a frog's body. Please lift me up, scratch under my neck and see what happens. तुम्हें खोने को क्या है, ठीक है, ऐसा करके वो उसको बार बार प्रोवोक कर रहा है. एंड श्वेता ने फिर बहुत अपने डिटर्मिनेशन के साथ, माइंड यू द ह्यूमन क्वालिटी हियर इज फोकस, सो फोकस इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर. शी सेज, आई एम अ स्टूडेंट and I would rather work hard today and build my future than bring my future right away and turn you into a prince and get married. I need to study, I need to focus, I need to build a life for myself. And she said, I actually don't have any time for Prince Charming or anyone for that matter. Right now I have my priorities sorted. And but then she smiles and says, however, a talking frog, that's actually cool to have. तो मेरे बैग में आ जाओ, मैं फ्रेंड्स को दिखाऊंगी और बहुत हम मजे करेंगे, कूल होगा, लेकिन तेरे को मैं प्रिंस नहीं बनाने वाली बिल्कुल अभी. Which is, I think, which is something that teenagers should be learning. बट एक्चुअली टीनेज में ही हम ना सारे फ्रॉग्स को प्रिंस बनाने की हड़बड़ाहट में रहते हैं, और हम अपनी पढ़ाई, बोर्ड एग्जाम, हम अपना सारा का सारा जो है उसको एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में डाल देते हैं. बाय द टाइम वी रियलाइज कि यार इसको वापस फ्रॉग बना सकते हैं कि, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, राइट? सो here Garang Das ji says, friends, we have all experienced this situation in our life, right? हमारी लाइफ के वो टॉकिंग फ्रॉग्स कुछ और हो सकते हैं. अभी मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन हो सकता है, अभी कुछ और दोस्त आया हुआ है, मैं आया हुआ तेरे शहर में, चल कॉफी पीने चलते हैं, while you were actually focused and determined to do something else. And although it's great to spend time with your friends, but कई बार अनइनवाइटेड और इस तरह के टाइम सिंक्स हमारी लाइफ में बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेकंड अध्याय से एक स्तोत्र ये बताते हैं, विच सेज कि डिटर्मिनेशन या फोकस जो है उसके बिना हम लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते. बाकी लोग हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो जर्नी हमें स्वयं के द्वारा ही लेनी पड़ेगी. और गीता जो है वो हमें रेकमेंड करता है कि हमारा जो पर्पस है वो प्लेजर के आगे होना चाहिए. Sounds too good to be true, sounds easier said than done. And when we were studying psychology, तो हमें हमारा ये थीम फर्स्ट ईयर में हमेशा होता था कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट हम पढ़ते थे, वहां पे हमें सिखाया जाता था कि मैन इज कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टूवर्ड्स रिड्यूसिंग पेन एंड एनहांसिंग प्लेजर. ये इंक्रीजिंग प्लेजर रिड्यूसिंग पेन, ये एक मोटो हुआ करता था ह्यूमन लाइफ का, जो एंशियंट ग्रीक्स या रोमन्स जो फिलोसोफर्स थे वो ये कहते थे. ग्रेजुअली जब हम पढ़ने लगे तब हमें ये आभास हुआ कि सिर्फ प्लेजर ही जिंदगी का एक मात्र ऑब्जेक्टिव नहीं होता. देयर इज सो मच मोर टू लाइफ देन फाइटिंग फॉर फिश हेड्स, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल का ये कोट है. तो यहाँ पर हमें अपने थॉट्स का जो नेचर है वो समझना बहुत जरूरी है. हमारे जो विचार है वो हर दिशा में जाएंगे,
ठीक है, 4 कैटेगरीज उन्होंने बताई और उन्होंने कहा है कि इसमें से जो 2 विचार हैं दे आर वर्थ गिविंग नरिशमेंट और अटेंशन टू, और जो और दूसरे 2 प्रकार के हैं उनको हम थोड़ा सा हमें एट बे रखना चाहिए, एट चेक रखना चाहिए। तो पहला है नेसेसरी थॉट्स, यू नो आवर डे टू डे थॉट्स, बेसिक चीजें जैसे उठे, ब्रश करे, फ्रेश हुए, रेडी हुए, मेल्स को रिस्पॉन्ड करना, ये वो थॉट्स हैं जो हमारी डेली एक्टिविटीज को रेगुलराइज करते हैं। आप अपने प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव थॉट्स यानी सकारात्मक विचार, जो कि हम टीबीएफ में कॉन्स्टेंटली एस्पायर करते हैं शेयर करने। दीज आर वैल्यू बेस्ड एंड दे शो अस और एनकरेज अस टू शो कंपैशन, एप्रिसिएशन, ब्यूटी, ये जो सकारात्मक जो सुंदर वैल्यूज लाइफ के होते हैं, सिंसेरिटी, रिस्पेक्ट, इस तरह के, और ये कंटीजियस होते हैं। और अगर हम एक दूसरे को पाते हैं इस तरह का वैल्यूज अपने लाइफ में करते हुए, तो हम खुद भी ड्रिवन होते हैं उसको फॉलो करने के लिए। तो ये है पॉजिटिव वैल्यूज। बाकी 2 टाइप के वैल्यूज है, वन इज वेस्टफुल, यहाँ पे या तो हमारा जो विचार है वो पास्ट में चला जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया था मेरे साथ में, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव बात हो गई, या फिर फ्यूचर में जाता है अगर ऐसा हो जाए तो एंजाइटी, वरी, कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंटमेंट्स, कंफ्यूजन्स, फियर्स, ये सारी चीजें इमर्ज होती हैं इस नेचर ऑफ थॉट से। और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो भी हमारे इनकाउंटर्स इन द वर्ल्ड से होते हैं। हम किसी से मिले, किसी ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, हमारे भीतर एक नेगेटिविटी आ गई, अबे यार ये तो ऐसी ही बकवास है, या फिर कुछ भी, या हमारे को जेलसी आ जाता है, अरे उस अच्छा उसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। इस तरह के विचार हमारे भीतर ज्यादा से ज्यादा आते हैं। एंड गौरांग दास जी सेज कि हमें ये अवॉइड करना चाहिए एनवी, जेलसी, प्राइड, एंगर। आई थिंक भगवान कृष्ण भी काफी कहते, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जो वाइसेस हैं ये डेफिनेटली ओवरकम करने लायक हैं, राइट। तो हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री होने के लिए पॉजिटिव और नेसेसरी थॉट्स पर ध्यान देना चाहिए और नेगेटिव और वेस्टफुल थॉट्स को मिनिमाइज करना चाहिए। तो हम डिस्ट्रैक्ट ना हो शॉर्ट लिव प्लेजर्स के द्वारा। जो फ्रॉग आपकी लाइफ में आया हुआ है उसको भी गोदी में उठाओ, अपने बैग के अंदर डालो और चल पड़ो अपने मकसद में, अपने लाइफ में। सोशल मीडिया, इंटरनेट, रील्स, शॉर्ट्स, ये सारे हमारे टॉकिंग फ्रॉग्स हैं और हम हर रोज इनको बहुत ज्यादा हावी होने दे रहे हैं। मैं तो डेफिनेटली देती हूँ, मगर मेरे को भी अपने फ्रॉग को अब काबू में करना बहुत जरूरी है। So let us value the gift of opportunities that beloved God has given us. हमारा जो माइंड है उसको हम इतना जो क्लटर से भरा हुआ है, आप ये सोचिए हमारी अलमारी बहुत क्लटर से भरी हुई होती है, हम उसको खोलते हैं तो हम हमारा सोच जो है वो इम्पैक्ट होता है, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू वेयर। तो इमेजिन हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, उसमें अगर इस तरह से क्लटर होगा तो वो बहुत फॉग करता है हमें कंसिडरेबली। तो हमें थोड़ा सा क्लियर रखते रहना होगा। एंड फाइनली गौरंग दास जी सेज आवर रियल फ्रेंड इज डिटर्मिनेशन एंड नॉट अ टॉकिंग फ्रॉग विथ प्रिंसली प्रॉमिसेस। प्रिंस या प्रिंसेस जो भी हो सकता है आप बना सकते हो, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता जब तक नहीं है तब तक हमें उसको स्क्रैच नहीं करना चाहिए, किसी वैसी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर 2 स्टोरीज, आई हैव 2 more stories to do, but I'd love to open the floor for some interaction. And if you have anything to share with these 2 stories, respect and determination, you can do so, friends. Yes. Wonderful stories. And yes, if everyone is, if you are confused, we are on a different book. We will move to the same book next week. So please bear with us. This is So, my bad actually, really. Very sorry for that. मैंने ये किताब निकाल ली थी अलमारी से thinking कि हम ये पढ़ रहे हैं, and I started reading this. Yeah. but all of them are actually similar and same, so it doesn't matter much. We will continue with art of focus as well in the next labs. So, yes, very beautiful stories, and I actually forgot about the relationship and that Alzheimer's story. But thank you for the reminder. And today I am actually writing on the topic of youth only. And as you mentioned, the youth अपने teenage समय में सबसे ज़्यादा फ्रॉको के पास जाने की कोशिश करता है, and yeah, we shouldn't do that. So it's very good reminder. And yes, nowadays Instagram is our biggest frog. We should not even keep it in our bag. I think we should throw that away, but we are not able to.
uh, guilty as I speak. So yes, that's it from my side. Kamal, sir, would you like to share? Namaste, good morning, everyone. Thank you so much, Richa. The way you explain actually is always wonderful. No matter whether you choose the different book, but the way you are explaining, it's wonderful always. Pleasure listening to you. About that frog, I would say frog will keep coming in. You're lucky that frog are coming to you. कई लोगों के frogs नहीं आते हैं. But the thing is, how quickly you are going back to your track. That's important. You should understand that what is my biggest purpose in this life. And if you are aware enough, then definitely, no matter how many frogs or frognies are coming, uh, how quickly you are coming back to your track, that's important. Because frogs will keep coming, whether you are in young age or at whatever age, because these are like the obstacles, I would say, and they will keep coming in your life. And if you're aware enough, then you can quickly get back on your track. Yeah, thank you. Shall we continue? Palak, would you like to take a picture? All right. Okay. I would request everyone to turn on the cameras. Good morning, Pramila ji, Amma ji. I just heard you. Thank you, Sheikh sir, Secretary, Manishi, Radna. Morning, Priyanka ji. All right. Sanjay ji, Hema ji, Yami ji, would you like to turn on? Sheikh sir. All right. Good morning, Sanjay sir. Fine, everyone. Wonderful. Thank you so much. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Amazing. Anyone else would like to share? Yeah. Okay, we are done. Yes, okay. So now we come to the third story. And the human quality here is compassion. And the question is, whose compassion is higher? पहली तो बात ये मुझे जो लगता है कि कंपैरिजन हम जिस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं उसकी कोई जरूरत है नहीं. हमारे को इस बात पे फोकस होना चाहिए कि मैं मेरे भीतर क्या क्वालिटीज जनरेट कर रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में. सो यहाँ पे क्या होता है, on the shores of river Ganga there's a master and disciple, and the disciple is asking master, can you please tell me the meaning of compassion? Compassion, करुणा हम कह सकते हैं. बुद्धिज्म और हम हिंदू फिलॉसफी में बहुत इलेबोरेटली इनका वर्णन होता है, और बहुत सारे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं इनको डेवलप करने की. सो जो सेज है वो बोट का वेट कर रहे होते हैं, एंड वो स्टूडेंट को एक्चुअल आंसर नहीं देते, वो कुछ एक्सपीरियंशियल करा करके बताएंगे. सो द सेज आस्क्स, कैन यू सी द बेगर ओवर देयर? यस, ऑफ कोर्स आई कैन. जस्ट ऑब्जर्व हिम केयरफुली. एंड नाउ व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट देखता है एक एफ्लुएंट वुमन आती है पास में, और वो पुअर बेगर को देखती है और एक गोल्ड कॉइन वहां पे खनका के चल जाती है. एक गोल्ड कॉइन देकर के चली गई. ग्रेट सैक्रिफाइस, राइट? सोने की एक मुद्रा उन्होंने दी. डिसाइपल देखता रहता है. थोड़ी सी देर बाद में एक सेठ जी आते हैं, एकदम वेल्दी से मर्चेंट, और वो अपने हाउस कार्ट से निकल करके सबको नमस्ते करके, हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, हाँ राम राम सा, ये वो ऐसे ऐसे करके, और फिर बेगर को बहुत खुशी होती है, और मर्चेंट ना निकाल करके भाई 5 सिक्के खनकाते हैं, टड़क 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 टड़क, 5 टाइम्स गोल्ड कॉइन्स खनका करके, और बाकी सबको भी नमस्ते वगैरह करके, अरे राम राम, जय श्री कृष्णा, ये वो करके स्माइल वाइल करके चल देते हैं. ठीक है. तो भाई मर्चेंट ने तो उस लेडी से ज्यादा दे दिया. उसके बाद एक इनोसेंट सा बच्चा आता है, छोटा सा. ठीक है. और वो बच्चा उस बेगर को देखता है. बच्चे के हाथ में फ्लावर्स होते हैं, और वो बेगर को देखता है, बच्चा स्माइल करके उसको थोड़े से फ्लावर्स दे देता है. ठीक है. सो फीलिंग गुड, स्टूडेंट अपने मास्टर की तरफ जाता है एंड वो दोनों रिवर को देखते हैं और बर्ड्स को देखते हैं सर्कल करते हुए. और अब गुरु कहता है कि
वत्स, तुमने देखा, अब बताओ किसका योगदान सबसे अधिक तुम्हें प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट जो है वो तो नंबर्स में, जैसे कि हम फिर जाते हैं, मर्चेंट ने 5 गोल्ड कॉइन्स दी बेगर को, है ना, उसका कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा है गुरुजी। गुरुजी ने कहा हाँ भी और ना भी, ठीक है। तो जब स्त्री ने बेगर की कंडीशन दी, उसने दया करके, पिटी करके उसको दिया। और जब मर्चेंट ने दिया, तो मर्चेंट को एक्चुअली एग्जिबिट करना था सारे लोगों को, नहीं तो ना जयराम जी की करके आपको ना दान देने की कोई जरूरत होती नहीं है एक्चुअली, है ना। और आपको पैप्स को बुला करके कहीं डोनेशंस देने एनजीओ में जा करके और वहां पे फोटो खिंचा के फिर स्टोरीज पे डालना, दैट्स नॉट नीडेड। नेकी कर और दरिया में डाल एक्चुअली इज अ वैल्यूएबल एडवाइस, राइट। मतलब यू डू समथिंग और रिसीवर को भी नहीं पता चल रहा है अक्सर, तो दैट इज द आइडियल। लेकिन वो मुंह से निकलता ही जाएगा, अरे कमल आपने ये शर्ट पहनी बहुत बढ़िया, मैं तो सबके सामने बोल दूं, अरे कमल देखो याद है मैंने दिया था। दैट, वो हमारा ईगो आएगा ही बार बार किसी न किसी रूप में। बाय द वे, वेरी नाइस शर्ट कमल। सो इन ऑर्डर टू डिस्प्ले हिज वेल्थ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ही मेड श्योर कि भाई 5 सिक्के यूं ही पकड़ा दे, नहीं, ऊपर से बरसाएंगे ताकि वो क्लैंक करके आवाज भी हो, सो दैट पीपल गेट टू नो कि अरे भाई बहुत बड़े सेठ जी हैं, बड़े दयालु हैं, तो पीपल माइट वैल्यू हिम, राइट। सो वो कंट्रीब्यूशन जो प्राइड या पिटी से किया जाता है वो हाईएस्ट नहीं होता पुत्र, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। तो स्टूडेंट एंटिसिपेट करने लगा कि आगे क्या कहेंगे गुरुजी। उसके बाद फिर वो बच्चा आया, इनोसेंट सा, मासूम सा बच्चा। तुमने देखा वो शॉपिंग का बैग लेना लेके जा रहा था, एंड उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स थे, मे बी उसकी मम्मी ने उसको ग्रोसरी लेने भेजा था और वो अपनी मम्मी के लिए थोड़े से फ्लावर्स लेकर के आया था, प्यारा सा बच्चा। एंड दिस इज हाउ आई टॉक टू माय डॉटर एक्चुअली, व्हिच इज राइट सो नेचुरल फॉर मी टू स्पीक लाइक दिस। सो इंस्पायर्ड बाय अ फीलिंग ऑफ लव, एंड फ्रेंड्स आप ये नोट करेंगे कि छोटे बच्चों के भीतर ना करुणा बहुत नेचुरली आती है, एंड एज दे ग्रो अप ना, फिर वो डिवाइसिवनेस और फिर वो कैलकुलेटिवनेस वो धीरे धीरे आता है हमारे भीतर। आई एक्चुअली रिमेम्बर एन इंस्टेंस, हम मैं बहुत छोटी थी, प्रोबेबली 7-8 years ऑफ एज, जयपुर में हम कहीं स्टे कर रहे थे होटल में और हम रोड क्रॉस कर रहे थे खाना खा करके, मम्मी पापा मैं और मेरा भाई तो मुझसे भी बहुत छोटा था। एंड देयर वाज एंड आई हैड बैंगल्स इन माय हैंड्स, आई डोंट नो मैंने क्यों पहना था, पता नहीं बच्चों को क्या क्या फैंसी चीजें पसंद आती है। एंड आई रिमेम्बर कि हम रोड क्रॉस करके जा रहे थे, वहीं पे एक बेगर बच्ची आई। अच्छा, बच्चा बच्चे के साथ बेटर कनेक्ट भी होता है, ये भी एक चीज है। एंड लाइक टुडे आई रियलाइज कि भाई आई विश आई कुड हैव डन समथिंग अबाउट इट, बट एक 6-7 साल का बच्चा अपनी बुद्धि से क्या करेगा। एंड मेरी ये बुद्धि तो ओवर द इयर्स आई, 40 पे आई है, राइट, 6-7 साल में नहीं थी ऐसी बुद्धि। सो वहां पर, एंड मेरे को, और वो बच्ची मांग रही है कुछ और मेरे में ऑनेस्टी, मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आई एम टेलिंग दिस टू दैट गर्ल, एंड दैट गर्ल इज सेइंग नहीं नहीं ये चूड़ी तो है ना तुम्हारे पास। और मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा कि इतनी छोटे से रोड क्रॉस के टाइम में ये कॉन्वर्सेशन हो भी चुका है हमारा। आई नाउ रिमेम्बर, कंसिडरिंग हाउ इनोसेंट चिल्ड्रन आर, बिकॉज दे आर एबल टू सी कि अरे मैं, मेरे पेरेंट्स मेरे को घुमा रहे हैं घोड़ा गाड़ी, हम गाड़ी में जा रहे, होटल में स्टे कर, ये बच्ची नहीं कर पा रही है। वो रजिस्टर होता है छोटे बच्चों में बहुत जल्दी, राइट। बाद में जब हम पढ़ते, मैं जब एमएससी पढ़ रही थी साइकोलॉजी, तब हमें ये बताया, एक चैप्टर था हमारे सोशल साइकोलॉजी में, कि बेगरी एक बहुत बड़ा रैकेट भी है, आप दे भी रहे हो, वो बच्चे यूज नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें बाद में आपको समझ आती है, ठीक है। एनीवे, सो द गुरुजी सेज कि वो जो बच्चा अपनी माँ के लिए फूल लेके जा रहा था, उस बच्चे के लिए वेल्थ था, उस बच्चे ने उसमें से थोड़ा सा शेयर किया। भले ही वर्ल्डली कॉन्नोटेशन में उस फ्लावर्स का कोई बहुत इम्पैक्ट ना हो उस बेगर की लाइफ में, मगर वो बच्चे के सैक्रिफाइस के कॉन्टेक्स्ट में दैट वाज अ वेरी मेजर कंट्रीब्यूशन। उसका कंपैशन बहुत प्योर था, सेल्फलेस था। तो स्टूडेंट मास्टर के आगे झुक जाते हैं और इस मैसेज को रिसीव करते हैं। यहाँ पे भगवत गीता का एक नहीं, यहाँ पर एक वैष्णव रिफॉर्मर है श्रीला भक्ति विनोद, उनका एक बहुत सुंदर सा सूत्र है। Probably this is Bengali or what, I'm not able to gauge, but it's a beautiful verse, you know, manasa deho geho jo kichu more arpila tuvapade nand kishore sampade vipade jeevane marane
De mam gela tuvo o pad bharane. And here he says ki beloved God, I offer you my mind, my senses, my intelligence, my body, my entire existence. And I know and I see that when I serve you out of love, my heart is filled with attachment towards you. Okay? And this pure love for you keeps growing and growing, and it moves into compassion for all living beings who are your creation. Thus, my Lord, I engage all my assets for your pleasure in your service. और ये मैंने बिजलानी सर के एक टॉक में सुना था. It was about parenting, and that's why sir said parenting. It's a very personal choice. Nobody should be forced to enter into it if they do not feel like. But then he said it offers you an opportunity to enter a window of unconditional love, selfless love, loving somebody beyond yourself. So and you can experience it if you have a younger sibling that you love extremely dearly, if you have a nephew or niece at your house. आपके घर के और बच्चों के को यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो आप वो अनुभव जरूर कर पाएंगे. एंड यू नो वो तो एक शुरुआत है, वो प्रथम सीढ़ी है, उसके जरिए आपको यूनिवर्सल कंपैशन अपने भीतर वो कल्टीवेट करनी है. सो यू नो, loving somebody else, loving another being who is not able to give you back in any way. Actually children give us so much back, right? इतना सारा ऑक्सीटोसिन फ्री में हमें और कोई नहीं लेने देगा. रैंडमली किसी को जाके हम हग्स नहीं कर सकते थ्रू आउट द डे, राइट? बट किड्स, free oxytocin, so beautiful, but obviously should be consented and should definitely be the kid's wish as well to hug you back or to be hugged by you, right? I think it's a very sensitive topic in today's times. So here एक सेतु की तरह से ह्यूमन लव हमारे को डिवाइन लव की तरफ लेके जा सकता है यदि हम उसको अप्रोच कर पाए उस तरीके से. तो उसी प्रकार से गौरांग दास जी हमें कहते हैं कि हमारे को डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं व्हेन पीपल रीच आउट टू अस फॉर हेल्प एंड इट इज इन आवर हैंड्स. और हमें फिर वो मौका जो है बहुत ग्रेसफुली, बहुत कॉन्शियसली यूज करना चाहिए. कंपैशन के कुछ इंग्रेडिएंट्स वो हमें बताते हैं. Again, 4 ingredients. I really love this about him. You know, after every story, he'll give you some takeaway. And the first one is humility. यहाँ पर यदि आप अपने आप को सेठ जी की तरह सोचें कि अरे भाई मैं तो बहुत महान हूँ, लेकिन कहे भाई मैं तो राम का सेवक हूँ, भाई हम तो क्या करें, जनता के उपासक हैं, सेवक, ऑल दैट, वो ह्यूमिलिटी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन में आ रही होती है, isn't it? ऑक्सीमोरॉन जैसा प्रतीत होता है, राइट? वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी आए कि भाई भले ही मैं पुअर हूँ, रिच हूँ, ये जो हम एडमिट करते हैं तो ये हम सिर्फ शैलो तरीके से फैक्ट्स बोल रहे हैं. दूसरे लोगों को हम क्रेडिट करें या एक्नॉलेज करें और अपने अकम्पलिशमेंट्स को अगर सिर्फ मिनिमाइज करते चले, अरे भाई मैं क्या चीज हूँ और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. नहीं, रियलिस्टिकली आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज हो. रियलिस्टिकली आपको पता होना चाहिए कि आप में ये क्वालिटीज हैं. कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए. मैंने काफी देर से सीखा ये चीज. यू नो, मेरे को लगता था यार हम्बल होना है, बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते कॉम्प्लीमेंट्स. काफी टाइम तक ग्रेजुअली आई लर्न कि नहीं, इफ समबडी इज एक्चुअली एक्नॉलेजिंग समथिंग दैट यू हैव गुड अबाउट योरसेल्फ, वैल्यू एंड रिस्पेक्ट दैट पर्सन बाय रिसीविंग दैट कॉम्प्लीमेंट विद ग्रेस. एंड यू डोंट इवन नीड टू पे इट बैक एट दैट टाइम कि अरे आप भी तो बहुत सही हो, अरे आप भी तो बहुत बढ़िया. यू डोंट, यू जस्ट वो रिसीविंग इज अ पार्ट ऑफ दैट process. You have done your work. आपको बाद में कहीं आप opportunity मिले तब you can offer that kind of appreciation towards that person or to other people and pass that quality on. तब वो साइकिल चालू रहता है कॉन्स्टेंटली. बट हमेशा आपने मुझे कहा अरे मैडम आप तो बहुत बढ़िया, अरे आप भी बहुत बढ़िया, बात खत्म हो गई. नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी, राइट? तो हम्बल हो, आपको पता हो कि आप में क्या स्किल सेट्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं, मगर उसको आप बहुत ह्यूमिलिटी से आप ये माने कि ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, भगवान ने दिया है, मुझे दिया है, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, मेरे द्वारा ये शेयर हो रहा है लोगों से. ठीक है? तो एक बहुत खूबसूरत आई थिंक प्रार्थना यहाँ पे होती है, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये. तुम्हारे द्वारा दिया हुआ वस्तु, यू नो, ये शरीर, ये मानव शरीर, तुभ्यमेव समर्पित, तुम्हें ही मैं समर्पित करता हूँ. भोजन भी परमात्मा द्वारा दिया गया है, क्वालिटीज भगवान के द्वारा दी गई. आई थिंक बंगाली में यूनिवर्सिटी डेज में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो भी बहुत अच्छी सिंगर थी, एंड शी सैंग probably a नजरुल गीति or something, and that said
जोदी कॉन्टो दिए छो, अगर तुमने मुझे गला दिया है तो मैं तुम्हारे ही गुण गाऊंगी, यू नो समथिंग लाइक दैट। बहुत अमेजिंग। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे इस बात की याद आ गई, मेरे फ्रेंड की भी याद आ गई कि उसने बहुत खूबसूरत वो गाया था। और काजी नजरुल इस्लाम प्रोबेबली एक बहुत फेमस पोइट थे, और उन्होंने यदि ये लिखा था, तो क्या एक्सप्रेशंस हैं परमात्मा के प्रति कि तुमने मुझे ये दिया तो मैं तुम्हारे ही गीत गाऊंगा। आई थिंक भक्त का हृदय ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ह्यूमिलिटी सिर्फ यही नहीं है कि हम अपनी क्वालिटीज को बी लिटिल करें, मिनिमाइज करें, बिल्कुल आगे ही ना आने दें। आई हैव बीन अ पर्सन हु हेटेड बीइंग इन द लाइमलाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट मेरा कॉन्सर्ट भी चल रहा है, somebody is इंट्रोड्यूसिंग, और मुझे ना बहुत अजीब सा श्रिंक सा फील होता था कि यार ये क्यों बोल रहा है मेरे बारे में कुछ, और वो और सारी नजरें मेरे ऊपर है, वो बहुत अनईजी मुझे फील होता है। बट नाउ आई रियलाइज कि यार ये उसी भगवान ने दिया हुआ है, उसी के जरिए मैं उसी की पॉजिटिविटी शेयर कर पा रही हूँ। ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, और मेरे जरिए कोई और व्यक्ति परमात्मा के करीब जा पाएगा यदि, तो दैट इज मी कंप्लीटिंग दैट साइकिल वो ऑफ बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट टू गॉड, राइट। अगला है टॉलरेंस। आई थिंक यहाँ पर भी वी हैव अ बिग स्कोप फॉर इम्प्रूविंग हियर माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक many of us are already being great, but if we look around ourselves, oh my god, लोगों में टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टेंटली हर चीज अपने लिए चाहिए इंसानों को। कितनी रैम्पेंट किलिंग्स हो रही है एवरी सिंगल डे, हम न्यूज में पढ़ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये डेफिनेटली संभव है कि पीपल डू नॉट गेट अलोंग विद वन अनदर टुगेदर, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। बट इज इट नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू एमिकेबली स्पीक एंड हैव देयर ओन स्पेसेस और डिस्टेंसेस? वो नहीं हो रहा। तभी जाकर के भाई मैं मतलब वायलेंस पे आ रहे हैं या किसी नेगेटिव एक्सट्रीम्स पे आ रहे हैं, और आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहे उस तरीके से। एंड आई थिंक याद है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड जब हम कर रहे थे, तब मैंने ये बात बताई थी कि स्पिरिट गाइड्स ये सिखाते हैं, killing someone is the gravest crime we do to the other person or in this world। और यहाँ पे लीगल कोर्ट्स में भले सुनवाई है कि नहीं है, हमारी सोल जो है जहां जिस लेवल पे थी उससे बहुत नीचे के लेवल पे चली जाती है, और हम अर्थ में बार बार आ ही रहे ताकि हमारी सोल थोड़ी ऊंची लेवल पे जाए। तो वो सांप सीढ़ी का गेम नहीं खेलते हम कि भाई चलते चलते सीढ़ी से चढ़ रहा हूँ, फिर 99 में जाकर सांप के मुंह पर आकर के फिर वापस 3 या 4 पे आएंगे। Murdering someone, soul wise, or killing someone or causing any harm to another human being is like that 99 वाला सांप जो हमें 3 या 4 पे लेके जाएगा, और फिर हमें बहुत लंबा समय लगने वाला है वापस 100 तक पहुंचने में। रिलेशनशिप्स माइक्रो लेवल पे स्पाउस के बीच, सिबलिंग्स, पेरेंट चाइल्ड के बीच, फ्रेंड्स के बीच होते हैं। मैक्रो लेवल्स में कास्ट, नेशंस, एकेडमिक ग्रुप्स, रिलीजन्स। आई थिंक ये जो हमारा क्लब, हमारा जो ग्रुप है, रीडिंग कम्युनिटी है, यहाँ पर हमें फॉरगिवनेस, कंपैशन, काइंडनेस, लव, ये मौका मिलता है एक दूसरे के साथ शेयर करने का, एक्सपीरियंस करने का। ठीक है, इफ वी कैन नॉट फॉरगिव वी कैन नॉट लव। ठीक है, एंड द लास्ट वन हियर गुरुजी सेज सेल्फलेस सर्विस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फलेस सर्विस हमें उन सेठ जी की तरह नहीं करनी है, उस बच्चे की तरह करनी है, right? So this was the second last story, and finally the other story is a very small one. It is called A Circus Tamer, and it talks about mind control. बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक एडवेंचरस बाइकर जो है वो पहाड़ों पे जाते हैं, उनको किक फील होता है, एड्रेनलिन रश फील होता है। आई थिंक हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, राइट, जो चल पड़ते, निकल पड़ते एडवेंचर की तलाश में, और उनके भीतर पैशन होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स ये सब करने का, और उन्हें बार बार ना एक वो चैलेंज, मैं अब की बार ये वाला पहाड़ वो करके आऊंगा, है ना। शिवालिक के रेंजेस में वो जा रहे हैं स्केल करके, और लोग नहीं कर पाते, बहुत खतरों के खिलाड़ी टाइप होते हैं वो, और वो थोड़ा सा सांस वास लेते हैं रुक के, और जैसे वो पीक पे पहुंचते हैं उन्हें लगता है कि भाई विक्ट्री, मैं तो बहुत इतने ग्रेव टेम्परेचर्स पे मैं चढ़ करके आया हूं। और वहां पे वो देखते हैं एक ऑलरेडी साधु बाबा वहां पे आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, और उन्हें लगता है अरे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड। वो मैन सेज की तरफ चलते हैं, उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इतने बड़े, वो ये उसको ये नहीं कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैसे ही वो साधु बाबा भी आ गए होंगे एक्चुअली, इतने सॉलिट्यूड में टॉप ऑफ दिस माउंटेन आप क्या कर रहे हो। तो हर्मिट ने साधु बाबा ने कहा कि पुत्र मेरे बहुत सारे काम बचे हैं इससे पहले कि मैं प्लेन्स में जाऊं। ठीक है, वो पजल हो जाता है कि भाई क्या काम है आपके, यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा है, आप यहाँ पे बस योगा पोज में बैठ गए हो, क्या है।
तो कामनेस पर्सोनिफाइड, वो जो सेज हैं, कितनी सुंदर भाषा यूज की गौरंगदास जी ने। उन्होंने कहा, पुत्र मुझे कुछ जंगली जानवरों को टेम करना है। 2 hawks, 2 bears, 2 rabbits, 1 donkey and a snake। और वो आदमी आसपास देखता हुआ कहता है कि मुझे तो कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पे कोई नजर ही नहीं आ रहा है, कहाँ है ये वाइल्ड क्रीचर्स जिनकी आप बातें कर रहे हो। और वो सेज कहते हैं कि देखो पुत्र, ये जो 2 cunning hawks हैं वो हमेशा एक शिकार की तलाश में होते हैं और हमेशा गंदी जगहों पे लैंड कर जाते हैं, और मुझे उन्हें टेम करते रहना पड़ता है। ये मेरी फॉल्ट फाइंडिंग आईज हैं, जो कि हमेशा दूसरे लोगों में, दूसरी जगह, दूसरे सिचुएशंस में फॉल्ट की तलाश में होती हैं। आई थिंक आपने सुनी होगी शायद, वंस अपॉन अ टाइम आई हैड शेयर्ड अ स्टोरी अबाउट क्लीनिंग योर विंडो। एक कपल एक नए घर में जाता है, और वो जो वाइफ होती है वो बालकनी का जो विंडो होता है उससे देखती है बाहर पड़ोसन के घर, और वो कहती है कितने गंदे कपड़े इसके, देखो तो इसको कपड़ा धोना ही नहीं आता है ना। एंड एवरी सिंगल डे, एवरी मॉर्निंग, दैट्स द कंप्लेंट शी टेल्स हर हस्बैंड। पति अखबार लेके बैठते हैं चाय की चुस्की लेने, और वहां पे वो वाइफ का नैग शुरू हो जाता है, कितने गंदे कपड़े इसके, ठीक है, इसको मशीन लगा लेनी चाहिए, इसको मेड ले लेनी चाहिए, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, ऑल दैट काइंड ऑफ अनसॉलिसिटेड एडवाइस शी हैज। एंड देन 6 months गुजर जाते हैं, साल भर गुजर जाता है, एंड देन वन सिंगल मॉर्निंग व्हेन शी गेट्स अप शी सीज, ओ माय गॉड, लगता है फाइनली उसको ना मशीन उसने ले ही ली है, या उसने पैसे खर्च कर लिए थोड़े से, या मेड आ गई, या ढंग से कपड़े धोए उसने। तो वो पति, अच्छा पति की बात देखो तो पहले दिन नहीं सुधारा ये आदत, 1 साल निकाल ली है ना, आराम से, पेशेंस से। तो फाइनली वो अपना चश्मा रखते हैं, अखबार रखते हैं, चाय का जो कप है वो रखते हैं, उसके वो कहते हैं, डार्लिंग एक्चुअली पड़ोसी ने अपने मशीन मशीन कुछ नहीं किया है, आज सुबह मैं जल्दी उठ के हमारी बालकनी की धूल मिट्टी साफ की है। हमारी बालकनी जो है, हमारा जो खिड़की था कांच का शीशा, वो डस्टी था, उस वजह से हमेशा हमें बाहर की चीजें डस्टी नजर आती थी। जीसस क्राइस्ट ने सर्मन ऑन द माउंट, एक उनकी बहुत सुंदर सेइंग है, सर्मन ऑन द माउंट बाइबल में आती है, सामने वाले की आंख के अंदर एक छोटा सा राई भी नजर आ जाएगा, लेकिन स्वयं की आंख के भीतर पहाड़ भी नजर नहीं आता, है ना, ठीक है। हम दूसरों की लाइफ के लिए बहुत बड़े जज बन जाते हैं, लेकिन स्वयं के लिए हम सबसे बेस्ट लॉयर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो गुरुजी कह रहे हैं कि मेरी जो 2 आंखें हैं, जो सब जगह फॉल्ट देखती रहती है, सबका शिकार करती रहती है, और किस लिए फॉल्ट देखते हैं हम, ताकि वी कैन फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, राइट। आप मोस्टली फ्रेंड्स, एज अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो एज अ वुमन, ये बहुत सैड लगता है मुझे, हमारे कल्चर्स या सोसाइटी में, इंडियन फैमिलीज में विमेन को कम वैलिडेशन मिलती है स्पाउसेस से या पेरेंट्स से, और फिर वो वैलिडेशन की पूर्ति वो घर के अंदर आई हुई और जो महिलाएं हैं उन्हें नीचा गिरा करके स्वयं को बेटर फील कराने में यूज करती हैं। ग्रेट इंसाइट, मैंने 10-15 साल मैंने एनालिसिस करके ये पाया है, आपको अपने बारे में बेटर फील कराने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप एक्चुअली अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करोगे और उसके साथ कुछ अच्छा करोगे, जैसे आई थिंक पलक, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड यू हैव बिल्ड अ कम्युनिटी विच इज सेल्फलेस लाइक दिस, यू नो, शेर सर, आप, यू हैव अ जॉब ऑफ योर ओन एंड येट यू आर, यू नो, शेयरिंग द नॉलेज ऑफ योग। कमल, संजय जी, अमर जी, ऑल ऑफ यू, एवरीवन आउट हियर, श्वेता जी, आप सब प्रमीला जी, हम सब एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं किसी न किसी रूप से, तो ये दिस इज अ गुड वे टू मेक अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मैंने ये पाया है अपनी जिंदगी में, एक औरत होकर और एक मनोवैज्ञानिक होकर भी, कि मोस्टली जब हम अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते हैं तो खुद का स्किल डेवलप करने में ज्यादा मेहनत जाती है। मैं किसी और को बुरा बना दूं वो तो बहुत आसान काम है, मैं कहता हूँ अरे पलक तो बेकार है, 1 नंबर की है, सॉरी पलक, वेरी सॉरी, बट दिस इज सो इजी, इजंट इट। अरे कमल क्या है, फालतू कोई एकदम टाइम पास आदमी है, सॉरी कमल, आप चले भी गए ओके। हाँ, तो ये सी, इट इज सो इजी फॉर अस टू belittle another person in order to feel good about ourselves। हम बहुत सस्ते में अपनी लाइफ की एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा पूरा फोकस खुद को बिल्ड करने में जा सकता है ना, ठीक है। और सैडली इंडियन फैमिलीज में मदर इन लॉ को नहीं मिला होता है पूरे साल, पूरी जिंदगी भर वैल्यू, और फिर जो बहू आएगी घर पे उसको नीचा दिखाएंगे, तब हमें थोड़ा अपने बारे में अच्छा फील होएगा।
Nande, Devrani, Jethani, Sasi. It is so sad. I really feel so sad about it. I really wish कि मैं कोई ऐसा mental health या साइकोलॉजिकल प्रोग्राम कर पाऊं, मगर ये घोर जंजाल इतना ज्यादा फैला हुआ है कि मेरे अकेले से कुछ हो नहीं पाएगा ज्यादा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत रैम्पेंट है, जोर से, है ना। मेरे को बहुत जन्म लेने पड़ जाएंगे इस चीज को सुधारने के लिए, बट जबकि मेरा इरादा है कि भाई जल्दी से नक्की करो, अपनी यात्रा करके निकलो। सो एनीवे, सो टू आईज यहाँ पे हॉक है, एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू स्नैच एन अटैक। मुझे उनको ट्रेन करना है, नॉट जस्ट टू टेक बट ऑल्सो टू गिव। ये जो दो भालू है ये मेरे हाथ हैं। अब ये आदमी जो है हमारा एडवेंचरर, ये थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि भाई ये क्या बातें कह रहे हैं गुरुजी। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे जो टू रेस्टलेस रैबिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना। ये रैबिट्स मेरे लेग्स हैं, कहीं भी चल पड़ते हैं, कहीं भी निकल लेते हैं, ठीक है, जहाँ भी सिनेमा देखने चले जाते हैं, और मतलब रैंडम चीज है जिनकी जरूरत है नहीं मुझे, ठीक है। और मेरा जो ये स्टबर्न डोंकी है, मुझे उसको भी, ये बहुत लेजी है, इसको रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन ये हमेशा एक्सक्यूजेस से भरा रहता है। ये डोंकी मेरी बॉडी है। लेकिन इन सारे जो बीस्ट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, इनमें से सबसे जो विशियस है, सबसे ज्यादा जहरीला पुत्र क्या है? ये सांप है। और ये सांप क्या है? ये सिर्फ जहर उगलता रहता है। एंड द स्नेक इज नथिंग बट माई टंग, है ना, ठीक है। कुछ भी उल्टा सीधा क्रिटिसिज्म, एंगर, हार्श स्पीच, लाइज बोलता रहता है। एंड आई थिंक फ्रेंड्स, एज अ साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिकेशन पे हम काफी काम करते हैं क्लाइंट्स के साथ में। और एक थीम जो बहुत बार मैं कहती हूँ क्लाइंट्स को, कम्युनिकेशन के लिए जो स्ट्रगल करते हैं लोग, वहां पे होता है कि थिंक फिल्टर यूज करें। कुछ भी बोलने से पहले सोचे, इज इट ट्रू, THINK, टू, ट्रू। H, इज इट हेल्पफुल? I, इज इट इंस्पायरिंग? N, इज इट नेसेसरी? ट्रू है, हेल्पफुल है, इंस्पायरिंग है, नेसेसरी, उसके बाद भी इज इट काइंड? एंड आई डू नॉट बिलीव कि सच को कड़वा होने की आवश्यकता है। यदि वो कड़वा है तो प्लीज आप अपने पास रख लीजिए, अनलेस कि भाई मूर्ख तू मर जाएगा, ट्रक के सामने मत खड़ा हो। दैट माइट बी अ कड़वा सच एंड यू आर प्रोटेक्टिंग द अदर पर्सन। If it's not that, no need to speak a truth which is harsh or cruel for another person unless they are asking you, right? तो इस प्रकार से वो जो साधु बाबा है उन्होंने बताया कि ये सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको टेम करने के लिए मैं यहाँ पहाड़ों में आया हूँ। और ये बातें सुनकर वो जो माउंटेनियर है उसे एहसास हुआ कि ओ माय गॉड, असल एडवेंचर तो ये है जब हम अपनी अंतर यात्रा पे जाते हैं। बाहर के तो शिवालिक हम कितने ही फतह कर ले, लेकिन यदि भीतर के जानवरों को हम नहीं टेम करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। और भगवत गीता में भी सेकंड अध्याय में बहुत ब्यूटीफुली ये बताया गया है कि हमारे जो सेंसेस हैं वो हमेशा रिग्रेटेबल एक्ट्स में पुश कर सकते हैं, उनमें क्षमता है, यदि हम इंद्रियों को अगर इस प्रकार की छूट देते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट सेंसुअल डिजायर्स जो है वो हमें एडिक्शंस में लाते हैं और सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स में भी लेकर के आते हैं। और भगवत गीता कहती है कि अपने इंटेलिजेंस को हमें यूज करना है, अपने ज्ञान को यूज करना है, विजडम को हर स्टेप पे, और कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को कंट्रोल करते रहना है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सेल्फ मास्टरी हम किस प्रकार से कह सकते हैं। अगेन दिस रिमाइंड्स मी ऑफ पलक, बिकॉज आप मास्टरी पे काफी अमेजिंग तरीके से करते स्वधर्म और ये सारे प्रैक्टिसेस में। परसीवरेंस इन द मिडस्ट ऑफ एडवर्सिटी, आई थिंक परसीवरेंस बहुत ही अंडररेटेड क्वालिटी है। आपको जब लग रहा हो कि आपकी लाइफ वर्क नहीं कर रही है, चीजें सही नहीं हो रही हैं, जलालुद्दीन रूमी says that wound is the place where light can enter inside you if you just trust the process, if you just hold on, right? ठीक है, एक्चुअल में वो जो क्लाउड है ना उसके पास सिल्वर लाइनिंग है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात कह रही हूँ। बहुत वर्स्ट टाइप के डेज भी अगर आप गुजार रहे हो लाइफ में, लेकिन आपके भीतर ये होप अगर है कि यू नो आई विल सेल थ्रू दिस, आई ट्रस्ट गॉड, ये मेरी जर्नी के लिए जरूरी है, आई विल ट्रेड विद इट ग्रेसफुली। कई बार हम हिम्मत हार करके कुछ ग्रेव स्टेप कर देते हैं, लाइफ को एंड कर देते हैं, मगर फिर नेक्स्ट लाइफ में हमें उससे ज्यादा उस चीज को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो हम इसको प्रारब्ध की तरह से मानकर बहुत ग्रेसफुली उससे निकल पड़े। इवन इफ यू फॉल, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डांस, right? And wherever life plants you, bloom with grace in whatever situations. Unless you're being beaten, your life is compromised, unless those kind of grave situations are there, you can choose to operate with grace and
choose to sail through that situation or avoid yourself from that situation. But आपको विचलित होने की जरूरत नहीं, आप विचलित होकर के सही decisions नहीं ले पाएंगे. Attention to detail is a symptom of love is what he says. जब हम किसी के प्रति अपना अनुग्रह एक्सप्रेस करते हैं, मोस्टली क्या होता है, भाई यार तूने बहुत कमाल कर दिया. वो किस बात का कमाल है, उसको इलैबोरेट कर लो, थोड़ा बता दो क्या है. तो ग्रैटिट्यूड या अप्रिसिएशन यदि स्पेसिफिक हो जाए, कमल, आपने कल वो सेशन लिया था, बहुत अच्छा टेक अवे था, या वीकली एक्सरसाइजेस कराते, एक्टिविटीज कराते लोगों के साथ. आई हैव टू बी स्पेसिफिक विथ माय कॉम्प्लीमेंट एंड आई हैव टू, एंड द अदर पर्सन शुड फील दैट आई हैव जेन्युइनली. मैं कई बार सॉन्ग्स शेयर करती हूँ या बताती हूँ, तो पता चल जाता है कि किसी ने असली में सुना है, या कोई अरे वाह ऑसम सॉन्ग, ग्रेट सॉन्ग, पता चल जाता है कि यार नहीं सुना है, फिर जबरदस्ती भी नहीं करते. और कोई कहता है अरे यार इसका प्रोडक्शन क्या सही है यार, तुम्हारे वोकल्स क्या अच्छे आ रहे हैं, क्या अमेजिंग लिरिक्स है, म्यूजिक बहुत बढ़िया है, सुन के मजाक. वो यू कैन गेट टू नो, right, isn't it? So if you genuinely mean to compliment somebody, you can give attention to detail with the just the right amount of इम्पैक्ट. ठीक है, किसी को कुछ पसंद है तो उसके प्रेफरेंसेस के बारे में आपको पता हो, ये सारी चीजें वो बता रहे. और लास्ट कह रहे हैं कि जो चीजें करने में आपको बहुत अच्छा लगता है उसको बहुत अच्छी एनर्जी के साथ करें. Honestly confessing, I don't know whether I'm reading the right book or not, but I was actually excited about this. My daughter has not been well for the last 2 days, and she is sleeping close to me. She has a grave cold and all of that, and I chose to sit beside her so that I could attend to her if required. Otherwise, I do this from another room. But still, I was very passionate about doing this, and I hope frog urog की बातें जो है वो हमने करी काफी पैशन के साथ में. आई विल नाउ आई विल स्पेंड टाइम विद हर. सो कोई भी चीज आप कमिट कर रहे हैं तो उसको अपने पूरे डेडिकेशन से, डिवोशन से करें, हाफ हार्टेडली ना करें. अगर हम कन्विंस्ड हो गए और कमिटेड रहे उस चीज के प्रति, तो हमारी बॉडी भी फिर उसको परस्यू करेगी. जैसे रीडाथॉन आई थिंक इज एन अमेजिंग एग्जाम्पल. 21 days you commit to read, you commit and you're very conscious about not wasting your time elsewhere, right? इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट्स में जब हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं या हम खुद भी डिसाइड करें, तो वो हमें मौका देता है अपने सारे एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेकर के जाने का. तो फाइनली, final statement, under the operational control of clear and steady intelligence, our senses happily and easily come under control to work for us and not against us. What's right? With this, we complete our 4 stories. And if you have anything to share, friends, you can. I will go back and check whether I was reading. I will bring the right book to read henceforth. But I hope you enjoyed. हाँ, habits. My God, यार ये गलती मेरे से कैसे हो सकती है? I can't imagine. Anyway, ठीक है. So, but thank you for bearing with me. Thank you for tolerating me. I didn't feel embarrassed at all. I actually enjoyed reading these stories with Flair, right? So this was something like कि हम whatever, मतलब अलग topics पे आ गए, but हमने काफी enjoy किया. So thank you for being here. Palak, you can take pictures and you can also handle the discussions now. Lots of love. Thank you so much. We can take one last selfie and then we can move to discussion. I think, yeah, I would request everyone to turn on their cameras. Yes, the cute frogs mimicry and the kids mimicry were the showstoppers. Please, everyone, turn on your cameras if possible. Priyanka ji, Hima ji, Ruchra ji, Amar ji. Good morning, Shweta ji. All right, ready? Smile, everyone. Wonderful. Thank you so much. Yes, Sanjay ji, you were saying something. And thank you so much, Richa जी. बहुत ही बढ़िया सेशन था. Very insightful. बहुत मजा आया आपको सुन के. तो Sunday was sorted. Sunday morning ऐसी हो तो फिर कितना अच्छा लगता है. Yes, Sanjay. थैंक यू सो मच ऋचा जी फॉर दिस. कमाल कर दिया आपने. और अनुग्रह की बात करें तो थोड़ा विस्तार में बोलना पड़ेगा. ज्यादा विस्तार में तो नहीं बोलेंगे, बट जो फ्रॉग की कहानी हो या वो वत्स किसका योगदान अधिक है,
दया वर्सेस दिखावा। हम लोग जो है जंगली जानवर हैं और आपने बहुत अच्छे से टेम करने की कोशिश की हमको आज। अमेजिंग, वंडरफुल स्टोरी टेलिंग। और ये जो बीच बीच में आपने जो अलग अलग आवाजों के साथ में जो हमको प्रभावशाली ढंग से मैसेज को जो पहुंचाने की कोशिश की है, इट वाज अमेजिंग। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, हर किसी के बस की बात होती नहीं, और आप में आई थिंक वो भर भर के है। और आपने जैसा कहा कि उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं है। और हम लोग सब निमित्त मात्र हैं, आपने जैसे कहा उसमें, तो राम के सेवक हैं, जनता के उपासक हैं, क्या क्या उपमाएं दिया आपने, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you, Akash ji, Hema ji, Pramila ji. Yes, anyone else would like to share? All right. So, with that, we've come to the end of the session. We'll meet tomorrow at 8:30 p.m. Tonight, we don't have any Gita session. We have Gita session on the next week. So, with that, we come to the end of the session. Thank you so much, Richa ji, and thank you so much, everyone, for joining. Have a happy Sunday. Bye bye.